Meenal, thank you so much for giving us 1 hour of your time. I'm sure everyone who will be listening to this after it's uploaded will have a great time. It'll be an eye-opener session for everyone who wants to, explore blockchain or cryptocurrency. So thank you so much for giving us 1 hour of your time. Thanks, Anna, for having me. Great to be here. I'm always excited to talk about blockchain and cryptocurrencies and sort of share my perspective with the time I have spent in the industry. So, yeah, looking forward to the conversation. Sure. Meenal, I want to start off by, asking you, why is it so important in today's age to keep oneself updated or educated about blockchain or cryptocurrency? Or why is it so important, man? Can you? Yeah, blockchain and cryptocurrency have been existent or have been sort of the buzzword both in the tech and the finance world for a good amount of time now. A lot of people are now invested, and it is because it is a fundamentally new technology. It takes time for someone new to sort of understand fundamentally the tech is and what can potentially be the promise of crypto, right? So थोड़ा basics से start करते हैं. ठीक We'll है. try to go back and look at where cryptocurrency started, how Bitcoin was born, why Bitcoin was born. I want to start with Bitcoin because Bitcoin is one of the most cryptocurrencies. But to be very clear, Bitcoin is not crypto, right? Bitcoin is just one use case of blockchain and cryptocurrencies. Okay. Okay. So two stories I would like to share. First is before going into the technicalities, just want to sort of look back and see how trade, which is essentially storing of value and exchange of value between us, has evolved, over the past few decades or maybe beyond. And also would like to share where does cryptocurrency and blockchain fit in the entire human story, right? So first of all, fundamentally, if you look at human species, we essentially operate or we essentially have been one of the most successful species of the planet because of one fundamental reason, which is our ability to collaborate, communicate, and work together towards a particular, be it an objective, be it a goal, uh, which essentially allows us to form networks and operate in them. And whenever we build these networks, we have to define the rules of the network. We need someone who can run these network for us, right? So I think the entire philosophy behind blockchain is very fundamental, which goes back to the fundamental ethos of how we operate as a species. ठीक है. If you look at the trade now, overall trade or economics कैसे evolve हुआ है, going way back, right when even before money existed, we used to operate or we used to trade in small localized economies, right? I live in a small society. मैं किसी को जानता हूँ. I can trust them and I can initiate a trade with them. Before the existence of money, we used to trade via a simple barter system. I give you salt, you give me, let's say, a sheep, right? Okay. Or similar stories. Um, but because it is tough to assign any value that way, the economics or the efficiency of barter system was not great. That's when we came up, with the entire concept of money, which essentially is, again, money is also a network, a belief system, in which we believe. Like for today, if you look at the US dollar as a currency or Indian rupees as a currency, when I pay you 100 rupees, you accept that and you consider that as of value because we believe in that network. We have set that belief between us, amongst us. And of course, there are bodies which, government bodies, banks, which come together to run the entire money ecosystem. मीनल, आप बार्टर सिस्टम को थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं क्या? व्हाट वाज द क्यों बार्टर सिस्टम में क्या गलती थी? क्या सॉल्व हुआ बाद में? कैन यू टच अपॉन दैट? राइट. हाँ, बिल्कुल. तो बार्टर सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली. एंड आई वुड से कि
इट्स नॉट ओनली अबाउट सिस्टम में क्या गलतियां थी, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वी कैन मेक द वर्ल्ड वी लिव इन अ बेटर प्लेस। कैसे हम उसको और एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे उसको और स्केल कर सकते हैं, है ना। तो बार्टर सिस्टम में यही चैलेंजेस थे एसेंशियली। वन, कि मुझे आपके साथ, इफ आई हैव टू एक्सचेंज सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर एग्जांपल with a let's say a sheep or a goat, है ना। तो अब एक बैलेंस फाइंड करना वेयर द एक्सचेंज कैन हैपन इज वेरी चैलेंजिंग, राइट। हम्म। आपकी कुछ परसीव्ड वैल्यू है गोट को लेके, मेरी कुछ परसीव्ड वैल्यू है सॉल्ट को लेके, और हो सकता है मेरे पास सॉल्ट की उतनी सप्लाई ही ना हो जो उसको मेक श्योर कर पाती है। करेक्ट। आई कैन नॉट सेल अ फ्रैक्शन ऑफ समथिंग इन विद इन अ बार्टर हम्म। सिस्टम, है ना। हम्म। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था, और दूसरा था क्योंकि बिकॉज हम बार्टर सिस्टम अपनी लोकलाइज सोसाइटीज में करते थे, तो उसको स्केल करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जब तक मैं सामने वाली पार्टी को जानता नहीं हूं, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं बार्टर कैसे इनिशिएट कर पाऊंगा, राइट। तो वन, थोड़ा सिस्टम इनएफिशिएंट था, और दूसरा उसको स्केल करना बहुत टफ था। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम की इनएफिशिएंसीज में हम लोग फिर थोड़ा डायरेक्शन में मूव किए कि हम कैसे एक बेस लेयर या फिर एक कॉमन कॉमन वैल्यू ग्राउंड। का, कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं, कॉमन वैल्यू की चीज इन्वेंट कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट मैं सारी चीजों को वैल्यू कर पाऊँ। वहीं जन्म हुआ, और वी एक्चुअली गॉट इनटू द बर्थ ऑफ वेरियस मेटल कॉइन्स। हम्म। अलग अलग तरीके के मेटल कॉइन्स रिकॉग्नाइज होने लगे, उनकी वैल्यू डिजाइन होने लगी, एंड देन द एंटायर मनी सिस्टम वाज बॉर्न। मनी सिस्टम इज एसेंशियली अ बिलीफ सिस्टम, राइट। मनी के वैल्यू, मनी की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ कोर्स, फंडामेंटल इसके एक वो बिलीफ सिस्टम है। सेकंड है जो भी हम मनी क्रिएट करते हैं उसकी सप्लाई लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। यदि मनी की सप्लाई लिमिटेड नहीं है तो वैल्यू कहाँ से आएगी, राइट। फिर मनी के कुछ प्रॉपर्टीज वैसी भी होना चाहिए कि जिसको आप मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को आप फ्रैक्शनली ओन कर सकते हैं, आप उसका उसका एक पार्ट किसी को दे सकते हैं, राइट। तो हम्म। ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फंजिबल होना चाहिए, स्केर्स होना चाहिए। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हमने मनी के अराउंड क्रिएट की, और फिर हमने पूरा मनी का इकोसिस्टम बिल्ड किया। कॉइन से हम इवॉल्व होके वेरी सून पेपर मनी की तरफ चले गए, और पेपर मनी इज समथिंग, और द फिएट सिस्टम एज वी कॉल इट is something that we are living with today as well. करेक्ट। And this fiat system is again a network, a belief system, which is managed and run by global banks and, government very closely. Essentially capitalism का fundamental ये तो यही है कि जहाँ पे money is essentially owned by the state, and the entire economy and industry around it is something that is controlled by the state. ओके। Uh, तो ये थोड़ा मनी का एवोल्यूशन हुआ। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन कि हमने ओवरऑल ट्रेड को कैसे इवॉल्व किया। तो जैसे हम बार्टर सिस्टम में थे तो हमें पता लगा इनएफिशिएंसीज हैं, तो फिर हम लोगों ने मनी इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस की, विच इज द बर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नाउ दीज इंस्टीट्यूशंस सॉल्व वन फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड, विच इज कि मैं जब ए और बी दो पार्टीज बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है वैल्यू की, अनसर्टेनिटी है डिलीवरी की। टू टेक अ मॉडर्न एग्जांपल, मैंने अमेजोन से कुछ मोबाइल ऑर्डर किया है, मैंने ठीक है। पेमेंट कर दिया है, बट क्या वो एक्चुअली मुझे डिलीवर होगा, राइट। ये अनसर्टेनिटी क्लियर करने के लिए ही हमने इंस्टीट्यूशंस की बर्थ की, और इकोनॉमी में जब ये इंस्टीट्यूशंस की बर्थ हुई, दैट्स व्हेन ट्रेड लोकलाइज्ड सोसाइटीज से कंट्री लेवल पे गया और इवेंचुअली इवन ग्लोबल लेवल पे चला गया, राइट। हम्म। दैट्स व्हेन ग्लोबलाइजेशन हैपेंड। Sir, can you give some उसके modern बाद examples of this institution? When you say the word institution, what is it like some sort of a central bank, or maybe a national stock exchange, or a Bombay Stock Exchange, something like, or maybe SEBI, which actually regulates what happens in exchanges, something like that? इंस्टीट्यूशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, राइट। जो अर्नव आपने एग्जांपल्स दिए, दे आर लिमिटेड टू द फाइनेंशियल वर्ल्ड, बट ई कॉमर्स के लिए भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉमर्स के लिए भी सारे इंस्टीट्यूशंस के वाया हम लोग ट्रेड करते हैं। हम लोगों को मेडिसिन खरीदनी होती है तो हम कुछ रिकॉग्नाइज ट्रस्टेड लाइसेंस बॉडीज के थ्रू ही दवाइयाँ खरीदते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के अलाउ करते हैं, राइट। तो Correct. इंस्टीट्यूशन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फाइनेंशियल यूज केस, आई वुड से। तो काफी ब्रॉड चीज है इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूशन, और उसने फंडामेंटली ट्रेड को बहुत इवॉल्व किया। वहीं से ग्लोबलाइजेशन हुआ, वहीं से ट्रेड ग्लोबल हुआ,
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पूरी दुनिया बॉर्न हुई, इकोनॉमी ओवरऑल बहुत एफिशिएंट बनी आई वुड से ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि नाउ समथिंग विच इज गेटिंग प्रोड्यूस इन इंडिया कैन बी कंज्यूम्ड इन यूएस एंड वाइस वर्सा, है ना। तो उससे ग्लोबलाइजेशन से बहुत फायदा हुआ दुनिया को, राइट, वो क्लियरली हमने देखा। और इन आवर एज अ ह्यूमन स्पीसी, क्योंकि हम कोलैबोरेट करके सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाते रहते हैं, तो हमने एक और नई टेक्नोलॉजी की बर्थ थी विच वाज essentially internet which was born in the late 90s, essentially took this entire globalized trade which was happening sort of offline to the internet. And lo and behold, we are living in the world where we have Amazon, who is controlling our comments, and many other players. Google, who is controlling, how we search, how we interact with the internet, and so on and so forth. All the use cases जो हमारे ऑफलाइन वर्ल्ड में चल रहे थे, वो हमने डिजिटाइज इंटरनेट पे कर हम दिया लोग सर। लेके आए, डिजिटाइज कर दिया। ऑब्वियसली हमने इंट्रोड्यूस इंटरनेट के साथ, इंटरनेट ने सिर्फ यही नहीं किया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को वो ऑनलाइन ले गया, इंटरनेट ने हमें और भी बहुत सारी नई वैल्यूज प्रोवाइड की जो हमने पहले इमेजिन ही नहीं की थी। हेंस इंटरनेट का इतना एडॉप्शन हुआ, इंटरनेट को हम इतना आज वाइडली यूज करते हैं। तो इंटरनेट की टेक्निकलिटीज में अपन और एज वी गो इन द कॉन्वर्सेशन वी विल डिग डीप, बट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटली वेयर बिटकॉइन वाज बॉर्न, जो मैंने ट्रेड का आपको पूरा एवोल्यूशन बताया, प्लस जो हम आज सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, तो इसेंशियली ये जो नेटवर्क्स हैं, अब मनी एक नेटवर्क है, इन इन सारे नेटवर्क्स को रन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो नेटवर्क को चलाते हैं, तो फंडामेंटली उन नेटवर्क को चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस के बाद बहुत स्ट्रेंथ और पावर आ जाती है। वी आर दे कैन डिपेंडेंट ऑन देम सॉर्ट कंट्रोल, ऑफ बोल सकते हैं। हाँ, डिपेंडेंट नहीं बोल सकते हैं, और हम प्लस they can define the rules of the network, but the rules of the network should be defined by the network, not just a single participating body or the single ruling body in it, है ना। और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है इज द 2008 क्राइसिस, द फाइनेंशियल क्राइसिस। करेक्ट। नाउ हमने कैपिटलिज्म जो एक इवॉल्व करके हमने जो कैपिटलिज्म वे ऑफ इकोनॉमी बनाया, दैट इज अ वेरी एफिशिएंट एंड द बेस्ट वे टू लिव इन दिस ग्लोबलाइज्ड ट्रेड वर्ल्ड। हमने प्लान नहीं किया था, हमने इमेजिन नहीं किया था, बट उस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल जो इनहेरेंटली सर एक छोटा सा, मनी एक को बहुत प्लस, सिंपल एग्जांपल लेके आप कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का एग्जांपल दे सकते हैं क्या सर? कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आज की डेट में सारी सोसाइटीज कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज हैं, राइट, जहां पे आप देखेंगे तो करेंसी जो है इंडियन रुपीज आप देख लें तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई, इंडिया। ठीक है। यूएस में आप देख लें तो ये डॉलर एसईसी कंट्रोल करता है, और भी अलग मल्टीपल बॉडीज होंगी विच आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ, बट एसेंशियली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो भी मनी है, ट्रेड का जो इकोसिस्टम है और जो उसकी इंडस्ट्री है, दैट इज ओन्ड बाय द स्टेट, and these states work very closely with what we call as banks, who manage the entire money network and sort of allow people to save and transact via them, right? This is a fundamental capitalist society. अब 2008 का हमने दी फंडामेंटल फ्लॉ समझे कि क्या हुआ। ऑफ कोर्स काफी सारी डीरेगुलेशन हुई, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ले लिए, पूरी जो सप्लाई चेन बनी मनी की, वो काफी आई वुड से हाई रिस्क एवर्स बन गई। बट उसमें फंडामेंटली ये हुआ इवेंचुअली कि जो सिस्टम और या जो ये बैंक या जो गवर्नमेंट जो ये नेटवर्क और इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को रन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो सिस्टम फेल हो गया, बिकॉज जिनके पास पावर थी दे वर in good shape even after the crisis, but the mass which was essentially supposed to get benefited from this particular ecosystem suffered a lot, right? Okay. So essentially हुआ ये कि जो privately owned Businesses. बैंक, जो privately owned business थे, उनके पास inherently बहुत पावर चली गई, और सिस्टम वैसा बन गया कि कुछ परसेंटेज लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल था, बट मासेस के लिए नहीं था, राइट? जो कि हमने 2008 की क्राइसिस में भी देखा, एंड दैट्स वेयर बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट बिटकॉइन वाज इन्वेंटेड इन 2009। अब बिटकॉइन एसेंशियली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस है। थिंक ऑफ बिटकॉइन एज एसेंशियली इंटरनेट मनी।
जो फंडामेंटल चेंज है बिटकॉइन में और कोई भी पिछले फॉर्म ऑफ मनी में, वो ये है कि बिटकॉइन कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी, बी एट अ गवर्नमेंट, बी एट इंस्टीट्यूशन, के द्वारा नहीं रन किया जाता है. इट इज एसेंशियली रन बाय अ नेटवर्क. द सप्लाई इज कंट्रोल्ड और डिफाइंड इन द नेटवर्क. हाउ डज द नेटवर्क रीच अ कंसेंसस? कंसेंसस का मतलब है कि वो ट्रस्ट लेयर जो कि हमें एक नेटवर्क में बनानी होती है, दैट इज कंप्लीटली क्रिएटेड बाय द टेक्नोलॉजी, राइट? हम्म सो एक फंडामेंटल हमने इनोवेशन लाई, जहां पे अब जो ट्रस्ट की लेयर पहले इंस्टीट्यूशंस के साथ थी, हमने उसको टेक्नोलॉजी के वाया डिसेंट्रलाइज कर दिया उस नेटवर्क में, हम्म राइट? सो ये एग्जांपल फंडामेंटल ले इनोवेशन की है. सर, मे बी SBI can be a central body and which controls the flow of money going in and coming out. And sir, SBI ने सोचिए कुछ rules लगा दिए and now it has that controlling or that authority in the market, for example. And sir, Bitcoin ने इसको essentially, sir, Bitcoin actually took out the authority from any party. I think it made a consensus algorithm which was made for the people and by the people. लोग decide करते हैं कि क्या होगा network में, whether your transaction will fail or it will go through. कोई ऐसा single body नहीं है जो control करती है सब कुछ को, I think. Is करेक्ट. that correct, sir? तो एसेंशली, बिल्कुल बिल्कुल, तो एसेंशली जो नेटवर्क को एक सेंट्रल पार्टी रन कर रही थी, उस सेंट्रल पार्टी को हमने बेक करके वो पावर वापस नेटवर्क को दे दी. Hmm. बिटकॉइन आज की डेट में इज रन बाय समथिंग कॉल्ड माइनर्स इन दी ब्लॉकचेन वर्ल्ड, जो कि इसेंशियली एक कंसेंसस एल्गोरिथम है कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो सारी ट्रांजैक्शन हो रही है नेटवर्क में, उसको इसेंशियली माइन करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं. बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की जो खास बात वो ये है कि एक बार, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो आपका एक कंसेंसस जब आ गया, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ब्लॉक्स की चेन में accumulate होती जाती हैं, hence the name blockchain, and that acts as a single point of truth of everything that has happened in the network in the past. तो एक Hmm. बार मैंने कोई वैल्यू एक्सचेंज कर लिया, मैंने कुछ भी एक्सचेंज कर लिया बिटकॉइन पे, तो दैट इज इरिवर्सिबल. और आई कैन नॉट कम बैक एंड से कि मैंने तो वो किया ही नहीं था, बिकॉज Hmm. बिटकॉइन का लेजर, जिसको हम बोलते हैं लेजर या डेटाबेस, एसेंशियली बिटकॉइन का लेजर इम्यूटेबल है और कंप्लीटली ट्रेसेबल है, राइट? और जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया अर्नव, वो है सप्लाई का. आज की डेट में जो इंडियन रुपीस की सप्लाई है या फिर जो यूएस डॉलर की सप्लाई है, मैं ये नहीं कहूंगा वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, बट टू अ गुड एक्सटेंट कंट्रोल्ड है. एटलीस्ट उनके हाथ में पावर है कि वो और आईएनआर प्रिंट कर सकते हैं और वो यूएस डॉलर प्रिंट कर सकते हैं. जब भी गवर्नमेंट को नीड आती है, दे आर फोर्स टू डू दैट. जिससे फंडामेंटली होता क्या है कि सप्लाई बढ़ती जाती है. अब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती जाएगी तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी, राइट? हेंस बिटकॉइन ने ये सॉल्व कर दिया, इसको टेक्नोलॉजी में हार्ड कोड करके. अब Hmm. बिटकॉइन की दुनिया में ये क्लियर है कि 21 मिलियन से ऊपर बिटकॉइन क्रिएट ही नहीं हो सकते, राइट? एंड देर इज नो सेंट्रल पार्टी और देर इज नो पार्टी इन द नेटवर्क विच कैन चेंज दैट. दैट इज डिफाइंड इन द प्रोटोकॉल, right? So that's the beauty of the network. The rules are defined by the network, and the rules are implemented in a way where the network itself keeps running the network, right? तो ये खास बात है बिटकॉइन की. और हम देखें तो past 12 years of Bitcoin, it has been up and running for 24/7, 365 days from more than 12 years now. और इसेंशियली हमने एक ऐसा मनी सिस्टम बना दिया है जो कि ग्लोबल है, जो कि ट्रांसपेरेंट है टू अ गुड एक्सटेंट, और जो कि डिसेंट्रलाइज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. सर, अगर एग्जाम्पल ले ले, सोचिए सर, आज के जमाने में एक बैंक अकाउंट है मेरा एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ मैं. सोचिए सर, मैं आपको 1,000 रुपए भेजना चाहता हूँ, तो मैं अपने बैंक के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ट्रांजैक्शन करता हूँ एंड आई थिंक थोड़ी देर में वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. सर, टेकिंग द सेम एग्जाम्पल, नाउ द बैंक हैज द राइट और अथॉरिटी टू आइदर अलाउ मी टू सेंड द मनी और नॉट अलाउ मी टू सेंड द मनी. इज दैट फंडामेंटली करेक्ट? सर, अभी बिल्कुल बिल्कुल सही बात. सर, ब्लॉकचेन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, समझा सकते हैं क्या इन दस? अगर बैंक को हटा देते हैं एंड अगर एक नेटवर्क हम्म. आ जाती है यहाँ पे, सर आप समझा सकते हैं कि बिटकॉइन कैसे इस चीज को करेक्ट करता है या मोर एफिशिएंट करता है चीजों को?
Sir, can you take this बिल्कुल. example? सो इसेंशली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको समझना फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है अर्नब. तो अपन बैंक की एनालॉजी से ही कंटिन्यू करते हैं इसको. जैसे कि बैंक्स में हम एज ए इंडिविजुअल और एज ए कॉर्पोरेट एक सेविंग्स बैंक अकाउंट या कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलते हैं. बिटकॉइन के वर्ल्ड में इनको हम वॉलेट्स बोलते हैं, राइट? क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है. इसेंशियली होता क्या है कि एवरी वॉलेट हैज अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की. पब्लिक सर, की इज समथिंग. क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, आप समझा सकते हैं सर, बहुत शॉर्ट में? हाँ, सो बेसिकली ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और फंडामेंटल क्वेश्चन है अर्नव. क्रिप्टोग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोर देन दैट क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन में कैसे यूज हो रही है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्रिप्टोग्राफी इसेंशियली आर हैशिंग एल्गोरिथम्स या फिर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ट्रांजैक्शन और सम डेटा इन अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड वे, राइट? अब जो भी बिटकॉइन बहुत सारे फंडामेंटल क्रिप्टोग्राफी के प्रिंसिपल्स यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज एल्गोरिथम कॉल्ड SHA-256, जिसका मतलब ये होता है कि जब मैंने एक पर्टिकुलर चीज को उस एल्गोरिथम के थ्रू रन करके किसी एक नए हैश में, जिसको हम बोलते हैं, हैश इज इसेंशियली अ नंबर, 64 स्ट्रिंग, डिजिट हेक्साडेसिमल या फिर एक फिंगरप्रिंट, नंबर करेक्ट. की तरह, फिंगरप्रिंट की तरह है. तो एक बार उसको आपने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो वो इरिवर्सिबल होता है, राइट? उसमें आपको इनफाइनाइट पावर लगेगी उस आ, उस हैश को डिक्रिप्ट करने में. जैसे कि हम, if we go back to World War II, right? One of the key reasons Nazis were beaten was because Britishers were able to crack the Nazi code, right? But आज की डेट में क्रिप्टोग्राफी बहुत स्ट्रांग है, राइट? क्रिप्टोग्राफी को डिक्रिप्ट करना, उसको आई वुड से हैक करना इन अ वे या एनक्रिप्ट करना इम्पॉसिबल है, राइट? तो फर्स्ट यूज केस ये है. सेकंड इज अ फंडामेंटल क्रिएशन ऑफ a private something called a private key or a and a private पब्लिक. key, which essentially forms, sorry, yeah, a public key and a private key, which essentially forms a wallet in any blockchain network. For example, Bitcoin. तो Bitcoin में आपकी एक public key होती है. पब्लिक की को आप essentially समझ सकते हैं आपके बैंक अकाउंट के नंबर की तरह, राइट? ठीक है. और प्राइवेट की को आप समझ सकते हैं आप इंटरनेट लॉगिन के पासवर्ड. पासवर्ड की तरह. करेक्ट. बट उसके यूज केसेस और भी ज्यादा हैं. जैसे प्राइवेट की आई वुड से, यदि आप बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन करते हैं तो प्राइवेट की को सिक्योरली रखना इन अ सेफ वे, अवे फ्रॉम इंटरनेट, अवे फ्रॉम हैकर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है. जब आप बैंक के साथ मनी स्टोर करते हैं तो बैंक गारंटी लेता है कि आपका वो अमाउंट उनके साथ सिक्योर रहेगा. बट क्रिप्टो करेंसी में ये फंडामेंटली असेट जो है, आ, वो जो ओन कर रहा है उनकी ही कंप्लीट ओनरशिप है. तो यदि आप प्राइवेट की मिस कर देते हैं तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप उस वॉलेट को आगे जाके एक्सेस कर सकते हैं, लॉकर में आपने राइट? सोना रख दिया, चांदी रख दिया, पैसे रख दिए. अभी आप लॉकर का चाबी आपके पास ही रहेगा, किसी बैंक के पास नहीं रहेगा. अगर आपने ये चाबी या प्राइवेट की आप जो बोल रहे हैं ये घुमा दिया तो लॉकर कभी नहीं खुलने वाला. एग्जैक्टली वही प्राइवेट की है, राइट? यदि आप उस प्राइवेट की को घुमा देते हैं तो आप वॉलेट एक्सेस नहीं कर सकते. और दूसरी बात, यदि वो प्राइवेट की किसी हैकर के हाथ में लग गई तो वो आपके सारे बिटकॉइन निकाल सकता है. और एक बार बिटकॉइन निकल गए तो वो ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल होता है. इसलिए प्राइवेट की को सिक्योरली रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लास्ट यूज केस है क्रिप्टोग्राफी का वो ये है कि इस प्राइवेट की का यूज करके आप कोई भी ट्रांजैक्शन जब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिनाल अर्नब को एक बिटकॉइन भेज रहा है. ऑफकोर्स हम बिटकॉइन नेटवर्क पे मिनाल और अर्नब नहीं होंगे, हम दोनों एक पब्लिक एड्रेस होंगे. पब्लिक एड्रेस मिनाल, पब्लिक एड्रेस अर्नब को जब बिटकॉइन भेज रहा है तो मिनाल अपनी प्राइवेट की से उस ट्रांजैक्शन को साइन करेगा. वो टेक्निकली कैसे होता है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट उसका प्रूफ ये है एसेंशियली, और उसका यूज केस ये है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क को उससे पता लगता है कि मिनाल ने ही वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट की थी, राइट? तो ये वेरियस यूज केसेस हैं क्रिप्टोग्राफी के जो कि ब्लॉकचेन में यूज किए और इन क्रिप्टो करेंसी को बहुत सिक्योर बनाया है आज की डेट में, ओके. सो आई थिंक करेक्ट? सर क्रिप्टोग्राफी हैज मेड ब्लॉकचेन एक्सट्रीमली सिक्योर इन अ वे, अगर सर इजीली करेक्ट. समझना चाहिए इस चीज को. यस, इट इज द फंडामेंटल पीस ऑफ ब्लॉकचेन. मतलब इसेंशियली ब्लॉकचेन को लोग सोचते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन. कोई अपने आप में ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन ने बहुत कुछ नया इनोवेशन किया है. ब्लॉकचेन ने इसेंशियली क्या किया है कि टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वर्ल्ड के बहुत सारे पीसेस को
they have put it together and they have the these Made cypherpunks it as more we call it in the efficient. cryptography world, and they have come up with blockchain technology, consensus algorithm, distributed systems, cryptography, the basics of economics and cryptocurrencies. इन सब पीसेस को आप एक साथ करते हैं तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी बन जाती है, राइट? ऐसा नहीं है कि अपने आप में ब्लॉकचेन कुछ नया है. इट्स द decade of innovations in the technological and the economical world that has come together to what we have blockchain as today, है ना? तो क्रिप्टोग्राफी बहुत essential पार्ट है. कंसेंसस एल्गोरिथम बहुत essential पार्ट है. कंसेंसस एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल चीज है. कंसेंसस एल्गोरिथम का मतलब यह है कि यदि आपके नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है तो जो भी पीयर्स उस नेटवर्क को रन कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम कैसे एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ पे आते हैं, राइट? उसकी वेरियस एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, वो काफी डिटेल्ड में है और काफी सेकंड और थर्ड लेवल की चीजें हैं, बट एसेंशियली ये हमने टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर दिया है, राइट? तो ये आई वुड से ब्लॉकचेन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट? क्रिप्टोग्राफी, हमने क्रिप्टोग्राफी की बात की, हमने कंसेंसस एल्गोरिथम्स की बात की, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की, बेसिक क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की बात की. इन सबको आप पुट टुगेदर करते हैं तो एसेंशियली एक सिक्योर ब्लॉकचेन नेटवर्क बनता है. सर जैसे कमिंग बैक टू द एग्जांपल वी हैड टेकन इन द बैंक, सर वहां पे बैंक ऑथराइज करती थी वो ट्रांजैक्शन को. सपोज सर आज मेरे पास एक बिटकॉइन वॉलेट है, मेरे पास अपना प्राइवेट की है, आपके पास आपका बिटकॉइन वॉलेट है, आपका प्राइवेट की है आपके पास. एंड सर अभी मैं अपने पब्लिक की या पब्लिक एड्रेस के थ्रू सॉर्ट ऑफ जो मेरा बैंक अकाउंट है, क्रिप्टो बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल, उससे अगर आपको पैसा भेजता हूँ, सो देर आर दिस इंडिपेंडेंट बिटकॉइन माइनर्स. आई थिंक दैट इज द करेक्ट एनोलॉजी. I think करेक्ट. through various steps, through various algorithms, they try to see if that is a valid transaction or not. एंड सोचिए सर अगर 10 बिटकॉइन माइनर्स है एंड 10 में से 5 से ज्यादा लोगों ने बोला कि नहीं यही अर्नव ही है, अर्नव ने ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है, सो तो वो वैलिडेट हो जाता है कि और कंसेंसस आ जाता है कि इट इज अ ट्रू ट्रांजैक्शन और इट इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन एंड वो बिटकॉइन आपके वॉलेट में पहुंच जाता है. And then through your private key you can access the bitcoin wallet and use it according to how you want, just like cash money or liquid money sent through a bank. Sir, is this correct? बिल्कुल अर्नव, आपने बिल्कुल सही समराइज किया. एसेंशियली सबसे पहले माइनस चेक करते हैं कि अर्नव ने यदि ट्रांजैक्शन इनिशिएट की है तो उनके वॉलेट में उतना बिटकॉइन है या नहीं. फिर वो चेक करते हैं कि आपने वो ट्रांजैक्शन जो भेजी है वो आपने ही ब्रॉडकास्ट की है या नहीं, जो कि प्राइवेट की साइनिंग से होता है जैसे मैंने बताया. और फिर तो बिटकॉइन में बेसिकली हर ब्लॉक बनता है 10 मिनट में. तो उस 10 मिनट के टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो एसेंशियली क्यू में चली जाती हैं. और जो ब्लॉक का साइज होता है, अब बेसिकली आप हर ट्रांजैक्शन के लिए एक हैश को आप स्टोर कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, जो कि अगेन क्रिप्टोग्राफी के वेरियस फंक्शन से बनता है. उस हैश आप क्योंकि मल्टीपल हैश स्टोर कर रहे हैं तो एक ब्लॉक में आप नंबर ऑफ हैश जितने स्टोर कर सकते हैं वो लिमिटेड रहता है, जो कि ब्लॉक साइज पे डिपेंड करता है, जो कि बिटकॉइन के केस में फ्यू एमबीज में होता है. तो बेसिकली क्यू में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको माइनस उठाते हैं, दे वेरीफाई कि बैलेंस है या नहीं, जो इनिशिएटर हैं उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है या नहीं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे परफॉर्म समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क. में एक टास्क उनको मिलता है बेसिकली, आप सोच सकते हैं. और वो तीनों ये पजल या टास्क हो सकते हैं और वो पजल और टास्क सॉल्व करते हैं, प्लस ये दोनों वैलिडेट करते हैं. उसके बाद जो अपने माइनर्स हैं उनको वो भेजते हैं कि मैंने पजल सॉल्व कर लिया और मैंने वेरीफाई कर लिया है. और जैसे ही 51% माइनर्स एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये जो माइनर ने ब्रॉडकास्ट किया है और जो वेरीफाई किया है वो सही है, वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है. ओके सर, जैसे बैंक है, आज सर बैंक का बिल्डिंग है, बैंक के फोन मैनेजर्स है, कस्टमर सपोर्ट है, सर आप फोन करके उनको सुना सकते हो कि क्यों मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एंड देयर इज अ फिजिकल पर्सन हु इज देयर टू आंसर यू टू ऑल योर क्वेरीज. सही बात. सर बिटकॉइन में ऐसा कुछ है, कैन यू कॉल दीज माइनर्स और कॉल दीज पीपल हु आर वेरीफाइंग योर ट्रांजैक्शन एंड टेल देम कि व्हाई डिडंट यू अप्रूव माय ट्रांजैक्शन, व्हाट इज रॉन्ग? सर इज देयर समवन, इज देयर सम फोन नंबर और इज देयर समथिंग, इज देयर अ पर्सन वी कैन कॉल एंड आस्क आवर क्वेश्चन, या कैसे होता है सर ये बिटकॉइन की दुनिया में?
तो अब यही यही एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आता है अर्नव, राइट? आप बैंक को कॉल कर पाते हैं क्योंकि बैंक वो मनी के नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, या उस बैंक के नेटवर्क या उस मनी के नेट सिस्टम को रन कर रहा है। बट बिटकॉइन में कोई बॉडी है ही नहीं जो रन कर रही है, राइट? एसेंशियली दोज आर माइनर्स जो इस नेटवर्क को रन करते हैं। और हमारे लिए बिटकॉइन के नेटवर्क पे माइनर्स क्या है? इट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ पब्लिक एड्रेसेस, राइट? हमें किसी की गारंटी नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये माइनस जो भी एक बिटकॉइन माइनर बनने के लिए क्राइटेरिया है वो फुलफिल करते हैं, और जो ये लोग काम करते हैं टू कम टुगेदर टू अराइव एट अ कंसेंसस फॉर द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, दे डू दैट। इसलिए बिटकॉइन के नेटवर्क में आप जब भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको 3 से 4 बार चेक करना चाहिए कि आपने जो अमाउंट डाला है, आपने जिस एड्रेस को भेजा है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने यदि बाय चांस गलत अमाउंट भेज दिया या आपने गलत एड्रेस को पैसा भेज दिया, तो ये माइनस के हाथ में भी नहीं है या माइनस के भी कंट्रोल में नहीं है कि वो उस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर पाए। एक बार, जैसा कि मैंने कहा था इनिशियली, एक बार यदि ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो वो इम्यूटेबल है, वो वहां से चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए आप कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको 100% श्योर रहना चाहिए आप जो अमाउंट भेज रहे हैं वो वेरीफाइड है, डबल चेक्ड है, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं वो भी डबल चेक्ड है और वो भी वेरीफाइड है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं, आप किसी को नहीं कॉल कर सकते। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेटवर्क के द्वारा ही चलता है। इट इज रन बाय द नेटवर्क, कंट्रोल बाय द नेटवर्क, और उस नेटवर्क के जो रूल्स हैं उन्हीं के अंदर आप ऑपरेट करते हैं। तो नेटवर्क बिल्कुल सिक्योरली चलता रहता है। सर, आज अगर सोचिए ये नेटवर्क है, एंड सर सोचिए आज ये नेटवर्क के जो बिटकॉइन माइनर्स है या जो भी इंजीनियर्स है, सर सोचिए दे डिसाइड टू वॉक ऑफ, एंड सर उनको बिटकॉइन माइनिंग नहीं करना है, दे आर हैप्पी विद सम अदर जॉब। फिर तब क्या होता है? इज इट पॉसिबल दैट सारे नोड्स या बिटकॉइन माइनर्स चले जाए नेटवर्क से? इज दैट पॉसिबल? फंडामेंटली वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन नेटवर्क के प्रोटोकॉल में डिफाइंड है कि जब वैसा बिल्कुल पॉसिबल है कि माइनर्स, तो बेसिकली माइनर्स अपन को इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि माइनर्स किस चीज से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंसेंसस एल्गोरिथम में, राइट? तो जो मैंने आपको पजल बताया था, उस पजल को सॉल्व करने के लिए वो बेसिकली नेटवर्क में अपनी जीपीयू पावर कंट्रीब्यूट करते हैं। सीपीयू पावर का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है दैट इज जीपीयू पावर, मतलब हाई इंटेंसिटी पे जो है। तो जीपीयू पावर से वो बेसिकली एक रैंडम फंक्शन चलाते हैं और वो पजल को सॉल्व करते हैं। तो इसेंशली वो एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है? अब बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में डिफाइंड है कि हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए पर माइनर एंड अक्रॉस द नेटवर्क, ताकि वो कंसेंसस चलता रहे। यदि कोई भी थ्रेशोल्ड या कोई भी लिमिट ब्रीच होती है, तो या तो वो माइनर को बिटकॉइन कंसेंसस नेटवर्क से निकाल दिया जाएगा, या फिर ओवरऑल बिटकॉइन का कंसेंसस डाउन हो जाएगा। बट ऐसा बहुत अनलाइकली है, क्योंकि अब हमें इसमें यह भी फंडामेंटली समझना होगा कि ये बिटकॉइन माइनर्स का इंसेंटिव क्या है, ये बिटकॉइन माइनर्स माइन क्यों कर रहे हैं, राइट? उनका मोटिवेशन क्या है? तो उनका मोटिवेशन क्या है, राइट? तो ये सबसे ब्यूटीफुल, तो इसेंशियली जो मैंने शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस मिस कर दिया जब मैंने फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉकचेन बताए, वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या करता है कि गेम थ्योरी इन सारे पार्टिसिपेंट्स को, माइनर्स को, आपको, मेरे को, जो भी उस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने एक ऐसा तरीका निकाला है कि सारे स्टेक होल्डर्स नेटवर्क में इंसेंटिवाइज होते हैं, ठीक है? तो इसेंशियली जब एक माइनर कोई भी ब्लॉक माइन करता है तो उन्हें दो चीजें मिलती हैं एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द नेटवर्क। पहला है समथिंग कॉल्ड ब्लॉक रिवॉर्ड। हर हर ब्लॉक को माइन करने का एक रिवॉर्ड होता है, जो कि आई थिंक अभी 6.25 बीटीसी चल रहा है। ओ यहीं वाओ। से बिटकॉइन की सप्लाई क्रिएट होती है। बिटकॉइन ऐसा नहीं है कि थिन एयर से क्रिएट हो रहा है। एवरी ब्लॉक इज गेटिंग माइंड एंड बिटकॉइन इज गेटिंग एडेड टू द सिस्टम वाया दीज माइनर्स। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जो भी उन ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल करने में जो भी फीस हुई है, तो मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन किया, उस ब्लॉक में 10 ट्रांजैक्शन थी, उस 10 ट्रांजैक्शन की क्यूमुलेटिव फी का इंसेंटिव भी माइनर को मिलता है, राइट?
तो ये दो इंसेंटिव हैं जो कि माइनर्स को हमेशा अप एंड रनिंग करते हैं, उनको अप एंड रनिंग रखते हैं, एंड बिकॉज दे आर इंसेंटिवाइज दे आर ईगर टू टेक पार्ट इन द नेटवर्क, राइट। और एक और चीज, बिकॉज अपन इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, जो ब्यूटी है इंसेंटिव स्ट्रक्चर की वो ये है कि जो हमारा ब्लॉक रिवॉर्ड है वो हर 4 साल में हाफ हो जाता है। ओके। तो जब बिटकॉइन चालू हुआ था 2009 में, तो एक ब्लॉक माइन करने पे मुझे 50 बीटीसी मिलता था। सतोशी तो हमें पता नहीं है कौन है, बट सतोशी ने जब पहला ब्लॉक माइन किया था उन्होंने 50 बीटीसी का ब्लॉक रिवॉर्ड मिला था, जो कि हर 4 साल में आधा आधा होते जा रहा है। अब ये हर 4 साल में आधा 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 होता रहेगा, और कभी 2040 2050 में 21 मिलियन की क्लोज जाएगा, राइट। अब थ्योरेटिकली देखेंगे तो कभी भी 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होंगे ही नहीं, क्योंकि आप 6.5 हम्म 6.25 को फर्दर आधा कर देंगे, उसको फर्दर आधा कर देंगे, तो वो एक इनफाइनाइट मैथमेटिकल सीरीज है, राइट। हम्म तो ऐसे बिटकॉइन की सप्लाई बनती है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जो कि जिससे हम लोगों ने सप्लाई को मेक श्योर किया है कि, तो सप्लाई को मेक श्योर किया है कि वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, और विथ टाइम जो अमाउंट ऑफ बिटकॉइन है वो जो क्रिएट हो रहे हैं जिस रेट से, वो कम होता जा रहा है। इसलिए बिटकॉइन हम्म को एक डी इन्फ्लेमेटरी एसेट बोला जाता है। जो पहले साल में बिटकॉइन बने थे, एज कम्पेयर टू दैट आज हमने 3 हाल्विंग देख लिए हैं, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25। तो जो फर्स्ट ईयर में जितने बिटकॉइन बने थे उसके 1/4 बिटकॉइन बनते हैं आज की डेट में। आज से 3-4 साल बाद उसके भी हाफ बनेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंसेंटिव स्ट्रक्चर है और सप्लाई क्रिएशन का स्ट्रक्चर है, जिससे कि नेटवर्क सप्लाई कंट्रोल करता है। एंड टॉप ऑफ दैट, जैसा कि मैंने बताया, माइनर्स को इंसेंटिवाइज करता है तो कंसिस्टेंटली टेक पार्ट इन द नेटवर्क। सर, आपने आई थिंक एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, आई थिंक डी इन्फ्लेशन, which is a part of this thing. Sir, can you start off with what is inflation? How is inflation, सोचिए, how is inflation affecting value of money today? And compare this with what you said about the de-inflation concept with cryptocurrency. Sir, can you bridge this? Can you help us understand this? श्योर। सो इन्फ्लेशन फंडामेंटली एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी करेंसी का इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था, कोई भी करेंसी या कोई भी मनी की वैल्यू कहाँ से आती है, वो फंडामेंटली आती है उसके सप्लाई स्केर्स होने से, राइट। अब इमेजिन कीजिए कि टोटल दुनिया में 100 रुपीज है, 100 INR, जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ठीक है। आपके पास अपना 1 रुपए है, 1 रुपीज यू ओन, आई ओन 2 रुपीज, ठीक है, और बाकी और भी लोग बाकी ठीक है। 97 रुपीज ओन करते हैं। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 10 INR और प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो पहले जो आपकी 1 INR की 100 INR टोटल सप्लाई में जो परचेजिंग पावर थी, वो 110 INR जैसे ही हुए तो वो परचेजिंग पावर कम हो गई, हम्म राइट, क्योंकि टोटल सप्लाई बढ़ गई है मनी की, राइट। दिस इज इन्फ्लेशन, राइट। और मेरे पैसे की क्यों, वैल्यू कम हो गई है, अगर इन शॉर्ट देखा करेक्ट, जाए, एज टाइम इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ माई मनी इज डिक्रीजिंग। करेक्ट, क्योंकि सप्लाई बढ़ती जा रही है। आपका जो 1 रुपीज है वो 1 रुपीज ही है, लेकिन क्योंकि सिस्टम में INR बढ़ गया है तो आपके जो 1 रुपीज की वैल्यू है वो फंडामेंटली कम हो गई, उसकी हम्म परचेसिंग पावर कम हो गई। ओके। इसलिए हम देखते हैं कि कोई एक चीज जो कि आज से 100 रुपए की, आज से 5 साल पहले 100 रुपए की थी, वो 500 की हो गई है। उसकी वैल्यू अभी भी वही है, बट वो 500 इसलिए हो गई क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। ऑब्वियसली 100 और 500 आर हाइपोथेटिकल नंबर्स, बट यू गेट द पॉइंट। हम्म करेक्ट सर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स और प्लस पॉइंट्स इन द क्रिप्टो करेंसी की डी इन्फ्लेशन हो रहा है एज टाइम इज इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो यही खास बात है बिटकॉइन की, राइट, कि जैसा कि मैंने कहा कि हर 4 साल में नेटवर्क इंश्योर करता है कि हाल्विंग हो ही रही है, और क्योंकि ब्लॉक रिवॉर्ड हाल्विंग के कारण हाफ हो जाता है, तो बिटकॉइन की सप्लाई विथ टाइम जो बिटकॉइन क्रिएट हो रहे हैं वो कम होती जा रही है। हम्म आपको मैं एक सरप्राइजिंग फैक्ट और बताऊं, तो बिकॉज टोटल बिटकॉइन की अमाउंट कैप्ड है 21 मिलियन पे, आज की डेट में हम ऑलरेडी 18.5 मिलियन बिटकॉइन माइन कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ 2.5 मिलियन मोर और लेस बिटकॉइन माइन होना बाकी है, जो कि आगे जाके ईयर्स में और डिकेड्स में होंगे। तो मोस्ट ऑफ द सप्लाई इन बिटकॉइन ऑलरेडी माइंड। तो अब हम्म यहाँ से वो और भी ज्यादा डी इन्फ्लेमेटरी एसेट बन जाएगा,
क्योंकि ओवरऑल सप्लाई में इंक्रीज बहुत कम आएगा और हम्म इट विल बिकम अ गेम जहां पे इट इज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। यदि सप्लाई लिमिटेड है तो जो ओन आज आज जो मुझे पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ रहा है बिटकॉइन ओन करने के लिए, हो सकता है आज से 5 साल बाद बहुत ज्यादा देना पड़े, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इवेंचुअली एक हम्म टाइम आएगा जहां पे आज जितने लोग बिटकॉइन चाहते हैं उससे और ज्यादा लोग बिटकॉइन आगे चाहते हैं, तो फिर डिमांड बढ़ती जाएगी, तो फिर सप्लाई बोलेगा कि अब मैं इसको और ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा। राइट, दैट्स हाउ द हम्म डायनामिक्स ऑफ मार्केट एसेंशियली वर्क। डिमांड सप्लाई जो बोलते हैं, वेरी फंडामेंटल बट बहुत स्केलेबल कॉन्सेप्ट है सर। हाँ, मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया मुझसे। राइट, आज की डेट में हम लोग जो हमारे स्टॉक मार्केट चलते हैं वो भी फंडामेंटल डिमांड सप्लाई के बेसिस पे ही चलते हैं। राइट, एक बायर बोलता है कि मैं इस प्राइस पे खरीदने को रेडी हूँ, एक सेलर बोलता है कि मैं इस प्राइस पे खरीदने को रेडी हूँ। जैसे ये मैच करते हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इट इज आई वुड से इकोनॉमिक्स 101 और मार्केट्स 101, और वो भी बिटकॉइन में अप्लाई होता है। करेक्ट सर। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, sir, there are a lot of myths in today's world regarding blockchain, Bitcoin. कुछ लोग बोलते हैं सर criminals use Bitcoin as a transaction method. कुछ लोग some people say that criminal activity को बढ़ावा देता है ये। People बोलते हैं ये illegal है, आरबीआई अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है इस चीज पे। सर, how true is this? What is the truth in this? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट रेज किया आपने अर्नव। तो इसके दो साइड्स हैं। एक तो पहले समझते हैं कि जो पूरा करप्शन वाला साइड है, जिसको जिसको आई वुड से बिटकॉइन जिसने ओवरऑल बिटकॉइन को काफी इनफेमस कर दिया है, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि वो है क्या। राइट, तो आज की डेट में भी हम देखें तो क्रिमिनल एक्टिविटीज आज भी होती हैं, ड्रग की डीलिंग आज भी होती है, टेररिज्म के लिए मनी सप्लाई आज भी होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आज भी होती है। बट वो आज किस करेंसी में होती है सबसे ज्यादा? वो एक्चुअली पेपर करेंसी में होती है। राइट, यूएस डॉलर में होती है, आईएनआर में होती है। राइट, तो वो हर सिस्टम का पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में करप्शन खत्म हो गया है, बट क्योंकि बिटकॉइन फंडामेंटली एक नई टेक्नोलॉजी है, तो जो बैड एक्टर्स हैं वो उसके इनएफिशिएंसीज को ढूंढ के उसके अराउंड बैड एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो करना इजियर है। उसको गवर्नमेंट ने हम्म रेगुलेट नहीं किया हुआ है, वो दुनिया समझती नहीं है। राइट, तो कोई भी नई चीज आती है तो उसके साथ ये होता ही है। एंड आई वुड से वो सिस्टम को और एफिशिएंट बनाता है। जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट पे भी डार्क वेब का जन्म हुआ था। राइट, आज वो डार्क हम्म वेब बिटकॉइन के साथ यूज होने लग गया था इनिशियली इन द 2014-15 वाले टाइम पे। बट एक पॉइंट आएगा जहां पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के जो अच्छे यूज केसेस हैं और जो वैल्यू वो प्रोवाइड करेगा ग्लोबल ऑडियंसेस को, वो इस करप्शन वाले पार्ट को बहुत ही छोटा कर देगी। आज की डेट में भी हम आईएनआर यूज करते हैं, यूएसडी यूज करते हैं, बट उसका यूज ज्यादा अच्छी चीजों में होता है। हेंस जो करप्शन वाला साइड है हम उसको साइड में रख देते हैं। बट वो हम्म आज भी सबसे ज्यादा ड्रग डीलिंग तो यूएस डॉलर में ही होती है, स्मगलिंग यूएस डॉलर में ही होती है। राइट, तो वो बोलना गलत है कि बिटकॉइन से सिर्फ ड्रग डीलिंग होती है या बिटकॉइन सिर्फ गलत चीजों के लिए यूज होता है। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। और दूसरा साइड है उनके रेगुलेटरी सिनेरियो का। तो उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है अर्नव कि बिटकॉइन वॉज नेवर, और बिटकॉइन और एनी क्रिप्टो करेंसी फॉर दैट मैटर वॉज नेवर इलीगल इन इंडिया। राइट, यस, हमने आरबीआई के द्वारा एक बैन देखा था, बट दैट वॉज अ बैंकिंग बैन। To understand it more clearly, let me put forward what that ban was, right? ताकि कोई इसके अराउंड मिथ ना हो और कोई गलत अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो बेसिकली जो बैन आया था दैट वाज अ बैंकिंग बैन, और आरबीआई ने ये कहा था कि all the banks which are under the purview of RBI, which is most of our public sector banks, should not or are not allowed to deal in cryptocurrency trading. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिटकॉइन इंडिया में होल्ड कर रहे हैं तो वो इलीगल है। ठीक है, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कभी इलीगल नहीं था। ये बैंकिंग का बैन मेरे हिसाब से इसलिए लगाया गया था क्योंकि आप आरबीआई की हिस्ट्री देखें तो आरबीआई का जो कोर जॉब है और आरबीआई को जो रिस्पेक्ट है आज इंडियन गवर्नमेंट इकोसिस्टम में, वो इसलिए है, और सिटीजन भी ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि RBI has a very credible track record of securing money and or other asset classes for the Indian population.
तो आई थिंक वही सेम चीज वो इवेंचुअली क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी करना चाहेंगे, बट क्योंकि 2017 के अराउंड जो भी हम लोगों ने प्राइस एक्शन देखा, उससे एकदम से बहुत सारे इंडियंस ने क्रिप्टो करेंसी खरीदना चालू कर दिया, ओन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और क्योंकि उस टाइम, अब अपने आप में ये फंडामेंटली बहुत अलग टाइप की करेंसी है, ट्रांजैक्शन जैसे होती हैं बहुत डिफरेंट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उतने शॉर्ट टर्म में उस टेक्नोलॉजी को समझना, क्रिप्टो करेंसी को समझना, उसके अराउंड रेगुलेशन निकालना बहुत टफ था। हेंस आरबीआई चोज अ वे कि अभी के लिए इसको थोड़ा सप्रेस कर देते हैं, इसकी ट्रेडिंग बंद करवा देते हैं, एंड विथ टाइम हम इसको समझ के पोटेंशियली हम रेगुलेट करेंगे या इसके अराउंड रूल्स डिफाइन करेंगे, राइट। टू कट इट शॉर्ट, कभी भी आज भी इलीगल नहीं है, कभी भी इलीगल नहीं था इंडिया में क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना। जो एक बैंकिंग बैन था वो भी अब लिफ्ट हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियली आरबीआई के अगेंस्ट मैंडेट दिया है कि जो आपने बैंकिंग बैन लगाया है, दैट वाज that did not have a very concrete thought process behind it, and it was lifted this particular March, post which we also have been seeing, humongous interest in बुल मार्केट। cryptocurrencies back in India. हाँ, बुल मार्केट तो एक ग्लोबल, आई वुड से बुल मार्केट एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिप्टो करेंसीज अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप में ग्लोबल मार्केट है, बट स्पेसिफिक टू इंडिया ऑल्सो हमने देखा है कि बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बिकॉज जो बैंकिंग का बैन है वो अब हट चुका है। सर हाँ, मुझे एक टैक्सेशन के साइड से एक क्वेश्चन था। सर जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, एंड जैसे हम लोग स्टॉक शेयर्स खरीदते हैं, एंड सर लॉन्ग का, एंड सर जब हम लोग को एनकैश करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मनी, मे बी टू बाई अ कार और द ड्रीम हाउस, सर कुछ टैक्स लगता है उस चीज पे। एंड सर ऑल दोस टैक्सेस सर आपका बैंक बुक ऑफ अकाउंट जो बैंक में रहता है उसमें सब प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन यू फाइलिंग योर टैक्सेस या उसके हिसाब से टैक्स लग जाता है। सर सोचिए आज मेरे पास बिटकॉइन है, एंड सर सोचिए मैंने उसको 1 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड किया, एंड देन मैंने उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया वापस टू बाई समथिंग इन द इंडियन मार्केट में भी, कुछ गाड़ी खरीदना था। सर इस पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? अगर लगता है सर कौन सा टैक्स लगता है? एनी आइडिया ऑन दिस? तो अभी इसेंशली बिटकॉइन को आज की डेट में जो मेजर यूज है वो इसेंशली अराउंड इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग है, बिटकॉइन और कोई भी क्रिप्टो करेंसीज का। तो उसके अपन टैक्सेशन पार्ट को कवर कर लेते हैं। अभी हम इंडिया में स्पेसिफिकली उस स्टेट में नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे मर्चेंट्स पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप बिटकॉइन से कुछ खरीद सकते हैं, राइट। वो इवेंचुअली होगा ऐसी, बट आज की डेट में आप जो भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की एक्टिविटीज कर रहे हैं अराउंड बिटकॉइन एंड अराउंड क्रिप्टो करेंसीज, तो उसमें जो आप ट्रेडिशनल इक्विटी में या फिर जो ट्रेडिशनल कोई भी आप असेट क्लास में ट्रेडिंग या टैक्सेशन के लॉज अप्लाई होते हैं वो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं ऑन टैक्सेशन अराउंड बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज एज वेल, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलग अमाउंट्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलग अमाउंट्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में कंप्लीटली रेगुलेटेड नहीं है और एक रिकॉग्नाइज एसेट क्लास नहीं है, फॉर एनी वन हु इज डीलिंग इन टू क्रिप्टो करेंसीज it is very strongly advisable to pay all your taxes, which are governed by basic short-term and long-term capital gains, and you will be fine in the long run, right? To answer your question, Arnav, जो स्टैंडर्ड हमारे बाकी एसेट क्लासेस पे अप्लाई होते हैं, आई थिंक विच इज 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 30% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लाई होता है। श्योर, थैंक यू सर। सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जैसे हम लोग शेयर्स खरीदने के लिए ऑनलाइन ब्रोकर से हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे जीरोधा है सर, जीरोधा में जाके हम लोग स्टॉक शेयर कर सकते हैं, वहां पे रख सकते हैं सर। सर अभी ये सेम चीज करने का सर क्रिप्टो के डोमेन में कुछ कोई स्टॉक एक्सचेंज है क्रिप्टो का, कोई ब्रोकर्स है क्रिप्टो के? सर कैन यू टच अपॉन दिस पॉइंट कि यहाँ पे खरीदना बेचना कैसे, कहाँ से और कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल, तो यहीं पे हम लोगों ने फंडामेंटल प्रॉब्लम देखी थी, और आई वुड से कॉइन डीसीएक्स और उसकी तरह बहुत सारे सिमिलर प्लेयर्स का बर्थ हुआ था।
तो एसेंशली आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट, एज आई सेड प्रीवियसली, वो दे वर्क वेरी सिमिलर टू हाउ स्टॉक मार्केट्स एट नैस्डैक और इवन सेंसेक्स वर्क। फंडामेंटली डिमांड सप्लाई से ऑर्डर बुक्स बनती हैं, लिक्विडिटी डेवलप होती है और आप उन ऑर्डर बुक्स का यूज करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो ये है कि आपके जो इक्विटी मार्केट्स हैं स्पेशली, वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि वो एनएसई और बीएसई चलाते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया क्रिप्टो करेंसी के मार्केट्स 24/7, हेंस क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही लिक्विड एसेट बोला जाता है क्योंकि आप उसमें कभी भी 24/7 365 डेज एंटर कर सकते हैं और आप कभी भी उससे एग्जिट कर सकते हैं। आज की डेट में आपको इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज खरीदने हैं तो कॉइन डीसीएक्स ने बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकाला है बाय इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट कॉल्ड कॉइन डीसीएक्स इंस्टा। एक तो बेसिक मैकेनिज्म है जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आप ऑर्डर बुक से खरीद सकते हैं, बट क्योंकि ऑर्डर बुक से खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब लोग इतना टेक्निकली ट्रेडिंग savvy नहीं होते हैं। आपके मॉम, मेरे डैड या कोई डेवलपर जिनको इथीरियम पे एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है, राइट, वो चाहते हैं कि वो एक बहुत ही सिंपल तरीके से बिटकॉइन खरीद पाए या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद पाए। इसलिए हम लोगों ने कॉइन डीसीएक्स इंस्टा को इनोवेट किया या कॉइन डीसीएक्स इंस्टा को इंट्रोड्यूस किया इन दी वेरी अर्ली डेज ऑफ कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स इंस्टा बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जहाँ पे आप जाते हैं, आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी है बाय या सेल की, आप उसका आपको प्राइस वहां पे दिखता है। आप अपना कॉइन डीसीएक्स पे अकाउंट बनाते हैं, आप अपना बेसिक केवाईसी करते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करके एक डिपॉजिट करते हैं इंडियन रुपीस को, और आप जो भी अमाउंट का बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट डाल के आप फाइनल प्राइस देके विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। इंस्टा के थ्रू हम लोगों ने एक तो सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से खरीद सकते हैं बिटकॉइन और मल्टीपल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, और दूसरा बहुत ही जो अच्छी वैल्यू है वो ये है कि आप इंस्टा के थ्रू आज 100+ क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं विद इन अ फ्यू क्लिक्स, राइट। तो आई वुड से कॉइन डीसीएक्स इंस्टा आज की डेट में इंडियन मार्केट में वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट प्लेस एंड द मोस्ट अप्रोचेबल प्लेस टू बाय बिटकॉइन है। और ऑन टॉप ऑफ दैट दूसरा सवाल ये आता है कि जब आपने बिटकॉइन खरीद लिया है तो वो कहाँ जाता है, राइट। तो एसेंशियली कॉइन डीसीएक्स के वॉलेट में रहता है, जहां से आप चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट कॉइन डीसीएक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है, और हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी लेयर को वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया तो नहीं बोलूंगा मैं, बट वो थोड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया है, राइट। तो हम लोगों की एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम है जो कि मेक श्योर करती है कि क्रिप्टो करेंसीज मल्टीपल वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी भी एक सिंगल बंदे के कॉइन डीसीएक्स में या फिर कंपनी में उनके हाथ, किसी के हाथ में पावर नहीं है कि सिंगल एम्प्लॉय कैन टेक आउट क्रिप्टो करेंसीज। बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं जो कि ऑफ कोर्स टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट एक डेडिकेटेड टीम है हमारी जो कि सिक्योरिटी पे काम करती है। तो आई वुड से आप कॉइन डीसीएक्स इंस्टा से बहुत सीमलेसली बाय और स्टोर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज ऑन कॉइन डीसीएक्स। सर जैसे काफी सर आपने अच्छा पॉइंट रखा। सर सपोज मुझे आज जाना है, आई कैन डायरेक्टली गो टू योर वेबसाइट एंड आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ, केवाईसी आई थिंक कराना होता है। एंड सर देन आई थिंक आई नीड टू रजिस्टर माई बैंक अकाउंट, सोचिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक जो भी है। आई एंटर माई बैंक डिटेल्स, आई एंटर, सोचिए कि मुझे 5,000 रुपए जमा करवाने हैं। मैं 5,000 रुपए कॉइन डीसिक्स को देता हूँ एंड इन रिटर्न कॉइन डीसिक्स मुझे 0.12 या पॉइंट जितना भी बीटीसी होता है वो दे देता है। इज दैट अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्रोसेस वर्क्स? बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। 4 स्टेप हैं, इसको अपन फंडामेंटली ब्रेक करना चाहें तो आप सबसे पहले जाके कॉइन डीसीएक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको बेसिक अपनी डिटेल्स, ईमेल, फोन नंबर वगैरह वेरीफाई करना होता है। जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है आप अपना केवाईसी करते हैं। केवाईसी में एसेंशियली आप अपनी खुद की आइडेंटिटी और आपकी पैन या अकाउंट की आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, टैक्स होल्डर की आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करते हैं, जो कि अब हमने काफी इंस्टेंट कर दिया है। तो ये पूरी प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे टोटल।
और वो करने के बाद अब अपना INR डिपॉजिट कर सकते हैं। INR डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं और वो भी काफी सीमलेस है अब। और इंस्टेंट डिपॉजिट के वाया आप इमीडिएटली डिपॉजिट करके अपनी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, और जैसे ही आप खरीदेंगे वो आपके बिटकॉइन या कॉइन डीसीएक्स वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो रिफ्लेक्ट जाएगा। करता है। जो एक और जो खास बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि यार एक बिटकॉइन तो 15 लाख का हो गया, 15 लाख तो है ही नहीं मेरे पास, हाउ कैन आई बाय बिटकॉइन, राइट? तो बिटकॉइन की यही खास बात है कि बिटकॉइन में आप फ्रैक्शन ओनरशिप भी कर सकते हैं, राइट? तो आप हम्म। कॉइन डीसीएक्स इंस्टा का प्रोडक्ट आपको अलाउ करता है टू स्टार्ट एज लो एज ₹10। आप अपना पहला क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट ₹10, ₹100, ₹500, ₹1000, जितनी आपकी एपेटाइट है आप उसके अराउंड कर सकते हैं। और हमने यही यही सॉल्व करने के लिए इंस्टा का प्रोडक्ट बनाया है कि एक तो आपका एक्सपीरियंस सिंपल हो, और दूसरा यू कैन स्टार्ट एज लो एज ₹10, राइट? और इसी के अराउंड हमने अपना नैरेटिव बिल्ड किया है पूरा कि ट्राई क्रिप्टो, जो कि हम्म। हम स्प्रेड करने जो कि हम काफी एग्रेसिवली स्प्रेड करते हैं, जिसका मिशन या विजन ये है कि हम 50 मिलियन इंडियंस तक क्रिप्टो करेंसीज को लेके जाएंगे। तो या ट्राई क्रिप्टो टुडे एंड स्टार्ट एज लो एज ₹10 विद कॉइन डी सिक्स इंस्टा, दैट वुड बी a single या pitch line या I would say for कॉइन डी सिक्स इंस्टा। श्योर सर। सर ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट रखा। आई थिंक दिस इज अ फंडामेंटल कि लोगों को लगता है $20,000 है या 14 लाख रुपए है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कैसे खरीदूं? जैसे सर एक सिंगल शेयर रिलायंस का $2,000 है, एंड एक एंड यू कैनॉट बाई अ डेसिमल पॉइंट ऑफ दैट शेयर। मतलब अगर आप $10 है, यू कैनॉट बाई दैट शेयर, आपके पास $2,000 होने चाहिए, देन यू कैन बाई वन शेयर। बट सर बिटकॉइन में अगर आपके पास आई थिंक $10 से चालू होता है कॉइन डी सिक्स में, इवन इफ यू हैव ₹10, ₹100, ₹500, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट और अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट, ऑल ऑफ दैट, आप डेसिमल में खरीद करेक्ट, सकते हैं, एंड देन यू कैन कीप इट इन योर करेक्ट, वॉलेट। करेक्ट। ओके सर, सोचिए आज यस, मुझे कोई तो बेसिकली इमरजेंसी हो। उसमें जैसे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अर्नव, कि जो बिटकॉइन की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1 बिटकॉइन नहीं है, वो 1 सतोशी है, राइट? और 1 सतोशी इज इक्वलेंट टू 1 मिलियन ऑफ अ बिटकॉइन। वन ठीक है, मिलियंथ तो यस, ओ वाह। तो वो स्मॉलेस्ट ओनरशिप है बिटकॉइन की जो आप ले सकते हैं। इसलिए आज आप ₹10 का भी खरीद सकते हैं, और हो सकता है ये 10, यदि प्राइस बढ़ता है तो ये 10 बढ़ जाए, बट जो सिंगल फंडामेंटल यूनिट है वो 1 सतोशी है बिटकॉइन की। ओके श्योर सर। आपने सर यहाँ पे एक और लिक्विडिटी की बात की थी। सर आप समझा सकते हैं कि सर फॉर ऑल आवर ऑडियंस, सर काफी लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, सर व्हाट डज बिल्कुल। लिक्विडिटी मीन इन अ मार्केट? लिक्विड का मतलब क्या होता है सर? यस, तो मैं मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ही रहना चाहूंगा। तो मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लिक्विडिटी को समझना बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी को आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर असेट का जब मार्केट चल रहा है तो उसकी टोटल डिमांड या सप्लाई क्या है, राइट? डिमांड और सप्लाई कैसे दिखती है? वो इसेंशियली हमें दिखती है ऑर्डर बुक से। कोई भी एक ऑर्डर बुक के दो साइड होते हैं, डिमांड जिसको हम बोलते हैं बिड, जिसपे आप यू आर विलिंग टू बाय। बाय। अब मान लीजिए आज की डेट में एसबीआई का स्टॉक, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ₹100 चल रहा है। मैं ₹90 पे भी खरीदना चाह सकता हूँ, मैं 80 पे भी खरीदना चाह सकता हूँ, मैं 10 पे भी खरीदना चाह सकता हूँ, राइट? तो मैं इन जिस प्राइस पे भी मैं खरीदना चाह सकता हूँ या मैं चाहता हूँ उसकी मैं बिड लगाता हूँ, राइट? तो दिस इज ओके। द बाय साइड ऑफ द ऑर्डर बुक। सिमिलरली हम्म। जो होल्ड करते हैं एसबीआई का शेयर, वो हो सकता है कि 110 पे सेल करना चाहते हैं, 120 पे करना चाहते हैं, 500 पे करना चाहते हैं, राइट? तो ये सारे हमारे सेलर्स होते हैं और ये आस्क लगाते हैं, ठीक है? तो ये हम्म। जो कंबाइंड बाय और सेल होता है इसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं एसेंशियली, राइट? इस लिक्विडिटी को आप एक साइड पे ही सोच सकते हैं कि डिमांड साइड पे इतनी लिक्विडिटी है, बाय साइड पे इतनी लिक्विडिटी है। तो ये तो हो गया फंडामेंटली लिक्विडिटी होता क्या है। बट लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि क्योंकि जो सारी ट्रांजेक्शन है मार्केट में वो इन बायर्स और सेलर्स के बीच में हो रही हैं, तो यदि मैं आता हूं मैं इस मार्केट में और मान लीजिए मेरे पास बहुत अच्छा कैश है एंड आई वांट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ एसबीआई, ठीक है? अब वो 100 यदि मुझे बाय करना है तो उतना इक्विवेलेंट
100 शेयर के इक्विवेलेंट कोई सेलर भी होना चाहिए, राइट? हम्म तो यदि किसी मार्केट की लिक्विडिटी अच्छी है तो जिस प्राइस पर मैं वो 100 शेयर्स बाय करना चाहता हूँ उस प्राइस के मुझे क्लोज मिल जाएगा, वो 100 हम्म शेयर्स क्लोज मिल जाएंगे, वो 100 शेयर्स। दिस इज हम्म कॉल्ड स्लिपेज इन मार्केट। जिस प्राइस पे मैं खरीदना चाह रहा था, जिस प्राइस पे मैं खरीदने आया था, उससे मुझे इफेक्टिवली कितने प्राइस पे मिला, ये डिटरमाइन होता है लिक्विडिटी से। यदि ऑर्डर बुक्स की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है तो स्लिपेज कम होगा। इसका मतलब जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते थे वर्सेस जिस प्राइस पे आपने एक्चुअली खरीदा उसमें डिफरेंस कम है। हम्म एंड इट कैन एंड इट कैन अप्लाई टू अदर साइड ऑल्सो। यदि मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं इस प्राइस पे सेल करना चाहता था, बट क्योंकि लिक्विडिटी कम थी तो मैं यहीं सेल कर पाया, बट लिक्विडिटी अच्छी है तो मुझे इस प्राइस में मिल गया। हम्म सर, अगर लोगों के भाषा में ये समझे, सोचिए सर, आप बेचना चाहते हैं एंड यहाँ पे 100 लोग हैं रेडी है आपको देने के लिए और आप बेच देते हो। सो दैट इज हाई बिल्कुल लिक्विडिटी। आपने बेचना चाहा, आपने बेच दिया, आपका इच्छा पूर्ति हो गया। अभी लो लिक्विडिटी समझने के लिए और इल लिक्विडिटी जो बोलते हैं, आपने बेचना चाहा बट कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। यू आर करेक्ट ट्राइंग टू सेल बट नो वन इज रेडी टू बाई, फॉर जस्ट टू टेक द एग्जाम्पल। करेक्ट करेक्ट। लोग से ज्यादा, अर्नब एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा। लोग से ज्यादा हमें सोचना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी की कितनी यूनिट का सेल और बाय है, हम्म या कितने यूनिट लोग सेल करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एज अ बायर एसबीआई की 100 शेयर भी तो खरीदना चाह सकता हूँ, राइट? तो टोटल कितना शेयर लोग खरीदना चाह रहे हैं, टोटल लोग कितना बेचना चाह रहे हैं, वो इसेंशियली डिमांड और सप्लाई बताता है। और जितने ज्यादा लोग डिमांड सप्लाई के साइड पे होंगे उतना मार्केट एफिशिएंट होगा। हम्म एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि ट्रेडर्स और बेसिकली बायर और सेलर्स के प्राइस मैच होंगे, और जिस प्राइस पे एक बायर खरीदना चाहता है वर्सेस जिस प्राइस पे सेलर बेचना चाहता है वो बहुत क्लोज होंगे। एक हम्म इनएफिशिएंट मार्केट में ऐसा हो सकता है कि बिकॉज बहुत डिमांड सप्लाई नहीं है तो वो प्राइस मैच ही नहीं हो पा रहा है। एक हम्म इनएफिशिएंट मार्केट का एग्जांपल ये है कि सारे बायर्स 90 से 95 की रेंज में है और सारे सेलर्स 105 टू 110 की रेंज में है, राइट? तो दिस इज अ हम्म इलिक्विड मार्केट, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का प्राइस मैच ही नहीं हो पा रहा है। तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ट्रेड कैसे होगा? हम्म Sir, coming to the context of Bitcoin, yes, sir, NSE or BSE, I think they allow us to buy or sell, I think during only from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. Sir, and I think you mentioned that cryptocurrencies 24/7 खुले रहते हैं, 365 days आप जब भी चाहे जा सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा लेके आ सकते हैं। I think this is a very wonderful point। आपको वेट नहीं करना पड़ता है, सैटरडे है, संडे है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, जब भी मन चाहे पैसे की जरूरत है आपने बेच दिया, बेच के निकल गए। आई थिंक दिस हाई लिक्विडिटी इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट बिटकॉइन सर। करेक्ट करेक्ट। ये यूनिक है आई वुड से बिटकॉइन मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, कि वो 24/7 अप एंड रनिंग रहते हैं। और एज यू राइटली पॉइंटेड आउट नाउ, इट अलाउज यू टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज एट एनी पॉइंट इन टाइम अक्रॉस द ईयर, अक्रॉस द लाइफ टाइम, हम्म राइट? इसलिए इसको लिक्विड एसेट बोलते हैं। यहाँ पे लिक्विड एसेट बोलने का मतलब ये है कि कोई भी एसेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो आप देखते हैं कि मैं कितना इजीली उसको वापस सेल करना चाहूंगा। आप कोई भी फंडामेंटली कोई भी इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उस पर एक रिटर्न बनाना है, राइट? तो आपने आज इन्वेस्ट किया, आप उसको एक एक ड्यूरेशन के बाद निकालना चाहेंगे। तो एक तो कंस्ट्रेंट है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड लॉक इन होता है, राइट? जो कि हम्म उस एसेट को इलिक्विड बनाता है, राइट? यहाँ पे इलिक्विड का मतलब ये है कि मैं उस एसेट को अपने कैश में कब कन्वर्ट कर पाऊंगा। लिक्विड मनी तो मतलब कैश मनी, मतलब हाथ में यस, पैसा। यस, करेक्ट। हाथ में कैश, राइट? तो ऑब्वियसली बिटकॉइन के जो अभी फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं तो वहां कोई लॉक इन नहीं है, राइट? हम्म बट स्टॉक में यदि मान लीजिए कि आप, स्टॉक्स में भी ऑब्वियसली कोई लॉक इन नहीं होता है, बट आप खरीदते हैं आज, तो आपको या तो आपको 5 बजे तक सेटलमेंट करना पड़ेगा, या आई थिंक अब 3:30 का टाइम हो गया है जो कि मार्केट्स का नया टाइम है, तब तक आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, या आपको नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने का वेट करना पड़ेगा टू सेल इट, राइट? और टू बाय हम्म मोर, या जो भी आप करना चाहते हैं, जो कि हम्म बिटकॉइन के साथ काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे अक्रॉस हम्म 24/7 इवन ऑन वीकेंड्स ट्रेडिंग ऑन रहती है, एंड यू कैन एंटर एग्जिट एनी पॉइंट इन टाइम।
श्योर सर, श्योर, थैंक्स, दैट हेल्प्स अ लॉट। सर एक और चीज, जैसे सर आपने बोला लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट इन इलिक्विड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन लिक्विडिटी, हाई लिक्विड एसेट्स। सर जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एंड सर आप उसमें एसआईपी करते हैं एंड पैसा बढ़ता जाता है। एंड सर म्यूचुअल फंड्स डोंट गिव अस द, म्यूचुअल फंड इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक बॉक्स जिसका अंदर शेयर्स होते हैं और एक शायद म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो ये शेयर्स मैनेज करता है, आपको कुछ पता नहीं होता है। एंड सोचिए आपको 10%, 12% रिटर्न मिलता है ईयर ऑन ईयर, या 3 साल में एक बार, समथिंग लाइक दैट। सर एनी ऑप्शन इन द क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल, और एनी ऑप्शन फ्रॉम कॉइन डी सिक्स की आप अपना पैसा सॉर्ट ऑफ एसआईपी वे में, या सोचिए इन, सर जैसे आई एम अ बिगिनर इन क्रिप्टो करेंसी, एंड सर सीखने में 1-2 साल लग जाएंगे। व्हेन यू लर्न ट्रेडिंग, सोचिए सर मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट आई बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी। एंड सर पैसा बनाने के लिए सोचिए ट्रेडिंग करना पड़ता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड सर कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, यहाँ पे जिनको ट्रेडिंग नहीं आता है, दे कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे यू इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एंड यू गेट सम अमाउंट ऑफ रिटर्न। सर एनी ऑप्शन इन द क्रिप्टो मार्केट और कॉइन डी सिक्स दैट यू कैन lend your money or invest your money, something like that? I'm very glad, Arnav, you raised this point. And at CoinDCX, we are essentially on the mission of taking cryptocurrencies to millions and potentially billions of Indians, make investment easy, and provide them ways so that they can even multiply the cryptocurrencies they own. ठीक है? तो अभी हमने तो फंडामेंटली सबसे पहले एक नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, विच इज कॉल्ड CoinDCX Go, विच इज अ मोबाइल फर्स्ट प्रोडक्ट। आप अपने ऐप स्टोर, अपने iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने इंस्टा का प्रोडक्ट बताया, उसका एसेंशली वो मोबाइल वर्जन है, राइट। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप बेसिक स्टेप्स जो हमने डिस्कस की थी उनके थ्रू जाएंगे, आप प्राइस देखेंगे, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन ओन योर फर्स्ट बिटकॉइन, राइट। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास इसके अराउंड आते हैं कि मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, अब क्या? मैंने इथेरियम खरीद लिया, अब क्या? राइट। यस, देयर इज अ सेट ऑफ पीपल जो कि एक्टिवली अपना असेट मैनेज करते हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, उनको इन एंड आउट मार्केट के बारे में पता है, राइट। दे अंडरस्टैंड द मार्केट, राइट, which we also understand is not possible for everybody who is entering in the market, especially if you are if you are new to crypto or you have just invested in Hmm. crypto, right? And hence we have been putting in a lot of effort to basically build products which will allow you to earn passive income on Hmm. your cryptocurrencies. अब जो पैसिव इनकम है क्रिप्टो करेंसीज पे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ वन रीजन। वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फंडामेंटली बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आपने बिटकॉइन, आप क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो उस असेट को मैं ओन करता हूँ। मान लीजिए आप एक बिटकॉइन ओन करते हैं, राइट। यदि आप उसको एक साल के लिए ओन करते हैं तो वो भी एक साल बाद एक बिटकॉइन ही रहेगा, राइट। व्हाट इफ आई गिव यू अ वे टू इंक्रीज दैट वन बिटकॉइन इटसेल्फ, right? That is a passive income, or that is the line of passive income product that we are trying to build at CoinDCX. Essentially आज की डेट में CoinDCX पे दो प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज पे भी रिटर्न बना सकते हैं, राइट। तो इसेंशियली दो लेयर के रिटर्न हो गए। एक तो आप बिटकॉइन पे जो आपने प्राइस वोलेटिलिटी पे या प्राइस मूवमेंट पे बेट किया है Hmm. वो तो है ही, और थोड़ा दूसरा इस पैसिव इनकम के थ्रू आपने बिटकॉइन भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, राइट। हेंस आई फील कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस है इन दी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट स्पेस। एसेंशियली अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, विच इज डीसीएक्स लैंड एंड डीसीएक्स टेक। डीसीएक्स लैंड में बेसिकली आप अराउंड 8 to 10 जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, उन पे आप समवेयर अराउंड 6 to up to 12 to 13% का ईयरली इंटरेस्ट बना सकते हैं। Oh. ये इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वेरी करते रहते हैं, बट Correct. this is a very a very I would say a very low risk way of making passive income or cryptocurrencies, right? बिटकॉइन आप लेंड कर सकते हैं, आप इथीरियम लेंड कर सकते हैं, आप लाइट कॉइन लेंड कर सकते हैं, आप यूएसडीटी लेंड कर सकते हैं, एंड आई थिंक 7 to 8 मोर टोकन्स। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है।
जिसमें आई वुड से आज की डेट में ऑलरेडी हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्रिप्टो करेंसीज यूजर्स ने हम लोग हमसे लेंड की हुई है, राइट? तो दैट इज वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जहाँ पे लोग अपने क्रिप्टो करेंसी से पैसिव इनकम अर्न करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है डीसीएक्स स्टेक। डीसीएक्स स्टेक भी इसेंशली एक तरीका है जिससे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज पे एक रिटर्न, या फिर मैं और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का जो वर्ड है वो यूज करूं, आप एक यील्ड अर्न कर सकते हैं। इन जो क्रिप्टो करेंसीज आपको स्टेकिंग में मिलेंगी वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के कॉइन्स होंगे। दीज आर एसेंशियली कॉइन्स which work on something called proof of stake, as a consensus algorithm। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क होता है, वैसा ही एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसपे आज की डेट में इथेरियम नेटवर्क ट्रांजिशन कर रहा है। और देर आर टेंस ऑफ अदर क्रिप्टो करेंसी जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक नामक कंसेंसस एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में जहां पे आप एनर्जी कंट्रीब्यूट करते थे, प्रूफ ऑफ स्टेक में आप अपना एक स्टेक कमिट करते हैं। मैंने 10 इथेरियम कमिट किया नेटवर्क में, ऑफकोर्स मिनिमम 32 इथेरियम है, बट मैंने वो 32 इथेरियम कमिट किया नेटवर्क को माइनर बनने के लिए। और क्योंकि मैंने वो कमिट किया है नेटवर्क को, तो नेटवर्क मुझे उस पर एक इंटरेस्ट देता है। अब ये एक अगेन जो नया है क्रिप्टो में, जिसको ब्लॉकचेन के प्राइवेट की पब्लिक की इसकी हैंडलिंग नहीं है, उनके लिए बहुत टफ है करना डायरेक्ट ब्लॉकचेन के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारे टेक्निकल लर्निंग के थ्रू जाना पड़ेगा। इसलिए हमने स्टेकिंग का प्रोडक्ट निकाला है, जहाँ पे वो जो सारी ब्लॉकचेन की इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है वो कॉइनडीसीएस आपके लिए टेक केयर ऑफ कर लेगा। आपको बस अपने क्रिप्टो करेंसीज को आके या कॉइनडीसीएस के वॉलेट में डिपॉजिट करना है और उनको हमारे स्टेकिंग के अंदर लॉक करना है। जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है लेंड और स्टेक का। जैसे आप कॉइनडीसीएक्स में या तो आप खरीद के अपने वॉलेट में ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज, या आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और लेंड प्रोडक्ट पे जाके आप उनको बस विद इन अ सिंगल क्लिक जो करना चाहते हैं वो आप लॉक कर सकते हैं, और वो उस पर आपके इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम विद स्टेकिंग। स्टेकिंग में एक चीज जो समझना इम्पोर्टेंट है, वो दो टाइप की स्टेकिंग होती है। एक स्टेकिंग वो सिंपल लेंड की तरह होती है, जहाँ पे आप अपने एसेट्स को लॉक कर देते हैं और आप एक यील्ड अर्न करते हैं। एक स्टेकिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ऐसी होती है जहाँ पे आपको यू डू नॉट हैव टू इवन लॉक योर एसेट्स। तो आप कॉइन डीसीएक्स के वॉलेट पे ऑन करेंगे तो ही आपको उन पे यील्ड आना स्टार्ट हो जाएगी, और आती रहेगी एज लॉन्ग एज यू होल्ड इट। आप उनको ट्रेड करना चाहें बीच में, आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जब ट्रेड में हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको यील्ड नहीं मिलेगी, बट जैसे ही आप वापस वॉलेट में डालेंगे तो आपको फ्री यील्ड मिल जाएगी। तो इट इज अ वेरी लिक्विड वे ऑफ अर्निंग यील्ड आई वुड से, राइट? क्योंकि आपको अपने एसेट्स लॉक भी नहीं करना। तो लिक्विड स्टेकिंग, लॉक स्टेकिंग और डीसीएक्स लेंड, ये तीन तरीके हैं जिससे आप अभी कॉइन डीसीएक्स पे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। श्योर सर, थैंक यू सर। आई थिंक दिस वाज वंडरफुल। आपने ये समझाया, आई थिंक काफी क्लियर था। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन के साथ एंड करना चाहूंगा सर। व्हाट डू यू think is the future of this technology? Sir, speaking from a blockchain perspective, sir, I think cryptocurrency or Bitcoin or Ethereum is an application which works on blockchain technology. Of course, there is game theory, there is cryptography, etc. But sir, blockchain as a technology, sir, किन किन और sectors में future में use होगा या use हो रहा है? Sir, can you educate us on that? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है अर्नब, जिसपे हमें डेफिनेटली एटलीस्ट फ्यू मिनट स्पेंड करना चाहिए। तो बिटकॉइन, जैसा कि आपने करेक्टली बोला, इज अ यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, राइट? और बिटकॉइन का जो पूरा यूज केस है वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अराउंड बना हुआ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 10 से 12 साल पुरानी है, राइट? So it is still at a very nascent stage as a technology. There are a lot of challenges which we need to overcome before we can, go to real life use cases or values at scale. ठीक है? तो जिसको हम कंसिस्टेंटली सॉल्व करते आ रहे हैं 2009 से, और आज की डेट में बिकॉज अमाउंट ऑफ पीपल, अमाउंट ऑफ टैलेंट
जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की तरफ काम कर रहा है, वो बहुत ह्यूज है ग्लोबली, hence it is a very fast moving industry, right? तो ये हम्म challenges है, उनको बहुत ही aggressively काम हो रहा है. तो एक तो फंडामेंटल यूज केस, स्पेसिफिक टू यूज केस अपन बात करें अर्नब, तो एक तो पूरा फाइनेंस का इकोसिस्टम है. बिटकॉइन एक बेसिकली, बिटकॉइन अपने 10 to 12 years ऑफ एग्जिस्टेंस में एज अ करेंसी इवॉल्व हुआ है, राइट? आज की डेट में आप बिटकॉइन को एसेंशियली एज अ डिजिटल गोल्ड सोच सकते हैं, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू सोच सकते हैं. जब ये सिस्टम और एफिशिएंट और स्केलेबल हो जाता है, तो मे बी ये ग्लोबल करेंसी भी बन सकता है या इंटरनेट करेंसी बन सकता है, राइट? और आई एम श्योर ये बनेगा. आज भी वो है, आज भी वो है, बट वो स्केल पे नहीं. तो एसेंशियली स्केल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में बिटकॉइन नेटवर्क के थ्रू कितनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकती हैं. आप देखें तो वीजा एक पर्टिकुलर सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन करता है, जो कि आज की इस डेट में बिटकॉइन में काफी कम है नंबर. हम्म तो ये जब हम सॉल्व कर पाएंगे तो पोटेंशियली और रिटेल अडॉप्शन बढ़ेगा, और जो इंटरनेट मनी का जो यूज केस है वो और स्टेबलाइज होगा. बट आज की डेट में बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी बन गया है, वन तो एक डिजिटल गोल्ड है, आप उसको एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं. दूसरा, आज की डेट में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहीं भी वर्ल्ड में बैठ के कहीं भी भेज सकते हैं विथ a few dollars of peace, right? Just imagine and try to absorb that for a second. It is extraordinary. तो इसके थ्रू बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ. आज की डेट में हमारे बैंक कैसे सेटलमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड के एक बैंक को यूएस के एक बैंक से सेटलमेंट करना है. अ, तो एक तरीका है आप पैसा वायर करें, जो कि अगेन बहुत कॉस्टली है. दूसरा हो सकता है कि आप फिजिकली गोल्ड को यूके से यूएस मूव करें, जो कि बहुत ही लॉजिस्टिकली टफ, इनएफिशिएंट और कॉस्टली है. Imagine that these banks start settling in Bitcoin, right? They just हम्म have to get the address of the other peer and broadcast that. This can be done in like in $3, $4, $5. That is the fees that it will take to send billions of bitcoins, like bitcoin worth billions of dollars. ठीक है? तो एक ग्लोबल करेंसी, एक इंटरनेट मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सब यूज केसेस में स्टोर ऑफ वैल्यू डेफिनेटली बिटकॉइन बन चुका है और इवॉल्व होगा विद टाइम एज द टेक्नोलॉजी गेट्स मोर मैच्योर. दूसरा जो हमारा इकोसिस्टम है अर्नव, वो है इथीरियम के ऊपर. हमने इथीरियम पे थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया, इसलिए मैं एक बस फंडामेंटल चीज बताता हूँ कि इथीरियम है क्या और इथीरियम ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व. तो बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन था वो फंडामेंटली पेमेंट यूज केस के लिए बना हुआ था. अब मुझे कोई भी और नया यूज केस ब्लॉकचेन पे बिल्ड करना है. वो ये हो सकता है कि मुझे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज स्टार्ट करना है, या मुझे डिसेंट्रलाइज्ड एडब्ल्यूएस स्टार्ट करना है, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटेशन स्टार्ट करना है, या कोई भी ऐसी नई चीज जो आज तक इंटरनेट पे हुई नहीं है मुझे स्टार्ट करना है. तो एज अ डेवलपर मुझे खुद से अपना पूरा ब्लॉकचेन बिल्ड करना पड़ेगा. एंड बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन इज नॉट इजी, राइट? आपको पूरा कंसेंसस एल्गोरिथम, इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, जो भी हमने डिस्कस किया, आपको पूरा एंड टू एंड सेटअप करना पड़ेगा, विच इज वेरी चैलेंजिंग. हैंस इथीरियम ने क्या किया? इथीरियम ने बोला कि हम एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाएंगे विच इज बेसिकली प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन. ठीक है? उन्होंने एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की कॉल सॉलिडिटी. उस सॉलिडिटी का यूज करके आप इथीरियम के प्रोटोकॉल के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं वाया समथिंग कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. स्मार्ट ओके कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स विच द टेक्नोलॉजी विल एग्जीक्यूट. ठीक है? तो इथीरियम ने ये फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व की डेवलपर्स के लिए, जिससे कि वो आज की डेट में ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट दी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर. ठीक हम्म है? तो यहाँ से आई थिंक जो पूरी ब्लॉकचेन के यूज केसेस हैं बियॉन्ड फाइनेंस वो इवॉल्व होंगे. अ, सर जैसे सर एक क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ से देखते हैं. जैसे सर पहले अगर आपको कुछ स्टोर करना था डेटा तो आप सर्वर्स लगाते थे. अभी सर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया है, AWS आ गया है.
सर ये बेसिकली ये रिडंडेंसी हटाता है कि आपको फिजिकली कुछ नहीं रखना है. यू कैन कीप ऑल योर डेटा इन द क्लाउड एंड बिल्ड योर इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई ऑनलाइन शॉप खोलना चाहते हो उसके थ्रू, आपको वेबसाइट होस्ट करना है, तो यू डोंट नीड टू हैव खुद का कुछ खरीद के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना पड़ेगा ऑफिस में. बट आप इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द क्लाउड सेटअप कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक क्लाउड या ऐसा कुछ. तो सर इथेरियम अगर मैं आपके उससे समझूं, सो इथेरियम बेसिकली इज सॉर्ट ऑफ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म और समथिंग लाइक दैट. You can go on to Ethereum and via a set of rules, you can create a new, say, suppose new use case in supply chain or a new use case in marketing. And smart Yes, contracts is basically only a set of rules which you need to follow. Is that correct? करेक्ट करेक्ट. सबसे अच्छा तरीका है इथेरियम को समझने का, इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है. राइट. इसके ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं. उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते टाइम आप उस एप्लीकेशन के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वे में इथेरियम कंसेंसस अचीव करेगा जिसके अराउंड आप बहुत सारी चीजें एफिशिएंट कर सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा यूज केस है जो कि आज की डेट में इवॉल्व हो सकता है, और सॉरी जो कि आज की डेट में हम रियलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अर्नव, यू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू बॉम्बे. आपकी फ्लाइट इंश्योर्ड है, ठीक है, बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. आप कोलकाता एयरपोर्ट से पे जाते हैं एंड यू रियलाइज कि आपकी फ्लाइट लेट हो गई है. फिर आप बॉम्बे चले जाते हैं, आप अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि मेरी फ्लाइट जितना अलाउड टाइम ऑफ डिले होता है उससे ज्यादा लेट हो गई, तो आई हैव इंश्योरेंस क्लेम टू मेक. फिर वो हम्म. जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उनके कंट्रोल में है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस क्लेम देना है देना है. यदि आपका जेन्युइन केस है तो वो आपको इंश्योरेंस दे देते हैं. ठीक है, हम्म. अब इसको हम इमेजिन करते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में. आपने फ्लाइट पकड़ी, एक ट्रस्टेड पार्टी है एयरपोर्ट पे जो कि सारे फ्लाइट्स के टाइम लॉक कर रही है ब्लॉकचेन पे. ठीक है, आपकी फ्लाइट जैसे ही, मान लीजिए आपकी फ्लाइट 8 बजे थी और आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने बोला हुआ है कि 9 बजे से लेट हुई तो आपको एक क्लेम मिलेगा 100 रुपए का. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे ही फ्लाइट जो सेंट्रल पार्ट जो ट्रस्टेड अथॉरिटी है एयरपोर्ट की, उन्होंने लॉक किया कि ये फ्लाइट 9:15 हो गया बट ये फ्लाइट नहीं गई है. हम्म. अ, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ऑलरेडी जो कि आपको डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रोवाइडर से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा ऑन इमीडिएट बेसिस, क्योंकि आपने ये रूल डिफाइन किया हुआ था कि मेरी फ्लाइट 1 घंटे तक नहीं निकली तो आई हैव एन इंश्योरेंस क्लेम टू मेक. इसको मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया. कितना एफिशिएंट सिस्टम है. जिस चीज में आपको आज की डेट में 5 दिन लग रहे हैं वो आपका इंस्टेंटेनियसली एयरपोर्ट पे ही हो गया, राइट. तो दो साइड है ये सोचने के, जो कि नया इंटरनेट बॉर्न हो रहा है. उसका पहला पार्ट है कि वो सारे सिस्टम्स को बहुत ज्यादा एफिशिएंट कर सकता है. इंश्योरेंस मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है. और जो दूसरा साइड है जो कि इथीरियम और क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ने सॉल्व किया है, वो ये है कि आज की डेट में मेरे पास इंटरनेट पे कोई भी चीज ओन करने का तरीका नहीं. आई कैन नॉट ओन वैल्यू ओवर इंटरनेट. मैं आपको एक व्हाट्सएप इमेज भेजता हूं तो वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसको कोई ओन नहीं कर सकता है, राइट. तो ये ब्लॉकचेन ने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जो कि आपके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंटरनेट की प्राइवेट की है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं. उस प्राइवेट की के अंडर आप कोई भी एसेट या कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, और क्योंकि आप उसको होल्ड कर सकते हैं आप उस वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, राइट. तो इस फंडामेंटल यूज केस के अराउंड और इस फंडामेंटल के अराउंड बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं. आप इस घर को आप ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करके 10 लोग इसको कलेक्टिवली ओन कर सकते हैं. मैं ब्लॉकचेन पे इसकी हम्म. ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूँ. मैं स्टार्टअप कैप टेबल को ब्लॉकचेन पे ले आ सकता हूँ और वहां पे मैं ओनरशिप डिफाइन कर सकता हूँ, राइट. बहुत, ये तो मैंने आपको असेट के अराउंड बताया. तो यूटिलिटीज बहुत सारी हैं. अगेन जो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम्स है लाइक गूगल, AWS, दे आर प्रोन टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. क्या मैं इनको हम्म. डिसेंट्रलाइज कर सकता हूँ? आज से वीक बैक आई थिंक
Gmail went down, YouTube went down, we went haywire, right? Because we are dependent on that. एंड इंटरनेट के जो सिस्टम्स हैं वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर के प्रोन है. इथीरियम के नेटवर्क में एक माइनर या वैलिडेटर बंद भी हो जाए तो बहुत सारे और वैलिडेटर्स हैं जो कि नेटवर्क को अप एंड रनिंग रखेंगे, राइट? तो आई हम्म थिंक ब्लॉकचेन इंटरनेट को बहुत एफिशिएंट करेगा, यूजर कंट्रोल करेगा, और जो मैंने फंडामेंटल बताया, वैल्यू ओनरशिप और वैल्यू ट्रांसफर, उसके अराउंड बहुत हम्म सारे यूज केसेस बिल्ड करेगा. सर आई थिंक यू हैड मी एट व्हेन यू सेड दैट आपको जाके 5 दिन वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ. आई थिंक दैट ऑलरेडी सॉल्व्स 90% ऑफ माई प्रॉब्लम विच इज मेंटल पीस. मोस्टली सर आपको आपका एफर्ट देना पड़ेगा. यू टू क्लेम समथिंग दैट इज ऑलरेडी योर्स टू क्लेम. एंड सर बहुत मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है. आई थिंक दिस इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड कि यू आर डिफाइनिंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट दैट इज हैपनिंग. Yeah, there is nothing that is करेक्ट. depending upon the word of mouth. Everything is smartly and in a contract, to put it in short. करेक्ट. Yes, Sure, sir. yes, yes. Lot of efficiency, lot of new use cases. So hence very excited about the evolution of this space, right? I feel हमने जो भी टेक्नोलॉजी की बात की अर्नव, दैट इज ग्रेट, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो का मास अडॉप्शन जब आएगा, जब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एज अ टेक्नोलॉजी एक एंड यूजर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा. आज की डेट में हम लोग सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, हम डेली ऐप्स के साथ खेलते हैं, ऐप्स को यूज करते हैं, पर हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो कि इंटरनेट को एक्चुअली समझते हैं, राइट? तो आई थिंक हम अब ब्लॉकचेन के उस फेज में जा रहे हैं, या इंडस्ट्री के उस फेज में जा रहे हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल वैल्यू बिल्ड करेंगे, जो कि एंड यूजर के द्वारा कंज्यूम की जा सकती है, यूज की जा सकती है, Hmm. एंड वहीं से एक्चुअल मास अडॉप्शन ड्राइव होगा. सर एक छोटा सा क्वेश्चन था. सपोज बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि मुझे पता नहीं कहाँ पे जाके पढूं इसके बारे में. सर एनी आइडिया और एनी कोर्स और एनी बुक दैट यू वुड सजेस्ट टू further take down into cryptography or blockchain, anything like that, anything that coin d6 provides, sir, something like that. हाँ, आई थिंक ये दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि हम लोगों ने भी फेस की, मार्केट में हम लोगों ने भी देखी. ऑफ कोर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम और क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं which come together and build or make what blockchain is today. We have come up with a very simple solution, which is called DCX Learn, जहाँ पे हमने सारी बकेट्स, जो सारी टेक्नोलॉजी, जो सारे पीसेस हैं, उनको बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है. And you can go to dcxlearn.com and consume the content which has been written in a very simple way. uh, the entire motive is to improve awareness around blockchain cryptocurrencies. तो भले ही वो क्रिप्टोग्राफी हो, भले ही वो पब्लिक की, प्राइवेट की हो, कंसेंसस एल्गोरिथम हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, डीसीएक्स लर्न में आपको वेल स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, और आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. एंड आपको और भी फर्दर डिटेल्स में जाना है तो फील फ्री टू रीच आउट टू द कॉइन डी6 टीम. वी आर ऑलवेज हैप्पी टू टॉक ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज विद एनीवन एंड एवरीवन. Correct, sir. Sir, thank you so much. I think, sir, these 60 minutes were really, I think this will also become sort of a blockchain or a source of truth for everyone who is in the network or who is here watching us. Thank you so much, sir.